Okay, so Ayushman, first, congratulations for your selection in prestigious IOCL. Thank you, sir. Okay, and thanks a lot for your time. Sir, thanks a lot to you because the guidance your PD has provided me for preparing for interview has been insane. So it's Okay, really great. great. Ayushman, now you know your story. I'm going to share with the students, and I'm very sure they will learn many things from this, from your journey. Okay, So let's sir. start it. And your brief introduction, in which we are interested to know from which part of India you are, and when did you Okay. graduate, from which college did you graduate, and Okay. how was your GATE journey? Sir, my name is Aishman Garg and my hometown is Jaipur only. And I graduated from NIT Jaipur Hmm. in 2021 only in electrical engineering. Okay. I got AIR 217 in GATE Okay. 2021 Hmm. and I was shortlisted for interview in IOCL. And Okay. 2 days back on 14th only, I got the offer letter that I have been selected by the IOCL. Okay. Ashman, two more informations I'll take from you. One is your CGPA in your BTech, and second, your Uh, category. Sir, I'm from general category and my CGPA is 8.01. That is essentially Just 8 above only. 8. Hmm? Hmm, good. Uh, Now, Ayushman, with electrical engineer with 217 All India rank, general category, what are the probabilities normally to get into public sector, prestigious public sectors like IOCL? Sir, there is very less opportunity. There is very less possibility to get into IOCL, to be frank. Okay. Because since last year trends, what I have seen, I haven't Hmm. seen much students getting selected in IOCL after Hmm. rank 100. Hmm. Before AIR 100 or within the first 100, the selections are more. But Hmm. after AIR 100, there are rarely one or two selections. Hmm. But since my interview the day my interview was, I was very much demotivated after my interview because it didn't went the way I wanted it to be, Hmm. and Hmm. it was very bad on that day. I felt, but Hmm. after selection, it all feels Hmm. rosy, rosy. तो That's इससे all. ये कंक्लूजन निकलता है कि इवन इफ यू थिंक योर इंटरव्यू हैज नॉट Uh, गॉन गुड देयर आर चांसेस yes, राइट sir. Sir, देयर actually, they actually basically went hard on me. Matlab, from ओके the very first moment when I entered, they just shot the questions on me like bullet, and I was pretty much surprised because the candidate which went before just before me had an interview of about 30 minutes, and he had a very calm and nice interview where he was asked to introduce himself and everything. But my interview just went, I just sat and they started firing questions started on me like blasting you anything. huh? Yes, sir. So I think this was a pressure interview for you. Yes, very much, very pressure. Matlab, after 18, 19 minutes, I was like, leave me, I need to go. And when Okay, they say you go, I just came out of the hall fastly. I'll come to that part, the interview part, little later. So Ayushman, now tell me, like, see, with this rank, 217 rank, and Yes, sir. in electrical engineering, once you get in the gate, uh, as per my information, you are not doing your masters and all, also, right? No, So sir. normally students join the masters after scoring, so that there's an opportunity. So how you decided that you will keep on pushing and you'll not take any, and maybe Sir, there are other opportunities also, like Neti Bombay or masters and management courses, which are prestigious actually. So what stopped you from pursuing that, and what was your strategy? Sir, actually, I believe in that focusing on, or we can say that traveling in one or more ships doesn't lead you anywhere. Mm-hmm. So I was always focused that I need to get a job after my BTech, and from first second year only, I was of the view that I need to get into public sector. Mm-hmm. So there was only one gateway, and that is GATE only. So now the question arises that why I didn't join MTech. Sir, actually, I was of the view that eventually, if I had to join MTech, and after MTech, I had to join That is a placement. similar kind of Then, problem. so What's the placement. purpose of? If I had to get placement, then I can join placement from my college also. They are also very decent. Mm-hmm. So this was not the point of view. The main motive was to get into public sector. Mm-hmm. If I hadn't got selected in IOCL, I had started preparing for GATE 2020 also, 2022 also, because I was not sure that I will be selected. So I was preparing for GATE 2022 that if not this year, then next year. If not next year, then the other next year. So you have decided कि मेरे को PSU ही जाना है, और I'm Yes, sir. pull in that direction only. Yes, Great. sir. अच्छा Ayushman, अभी tell me one thing, like this IOCL got opportunity this year, they called people, and then you converted it also. So I must say it went very well for you, everything. Yes, sir. Tell me, so far अभी गेट के 217 रैंक के बेस पे आपको कहाँ कहाँ से कॉल आया है, और पब्लिक सेक्टर में से? कहीं से नहीं आया.
So this is the only thing and you converted the best. यस सर, मतलब एक इंटरव्यू मुझे हुआ है, आईएसएल का इंटरव्यू दिया है मैंने, बाकी मेरे कॉलेज में एक पीएसयू आई थी जीएसपीएल करके, Okay. वो गुजरात का पीएसयू है, तो गुजरात उसमें वाला, आई गेस, हाँ, तो वो मुझे लगता है कि मैं शायद उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, बट अगर मेरे को गेट से देखना हो तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया। हाँ, मुझे लगता है कि शायद साल के एंड तक या अगले साल जनवरी तक मुझे एनटीपीसी और सीआईएल इन दोनों में मिल सकता है, बट जैसा पीजीसीआईएल या ओएनजीसी में मुझे चांस कम लगता है। जैसे ओएनजीसी में 17 सीट्स हैं इलेक्ट्रिकल में जनरल की, so I don't think that I have much chance with AIA 217. तो केवल ISL में आया और वो कन्वर्ट हो गया। Yes sir. अच्छा, अब एक और तुम्हें आयुष्मान, I'm telling you one thing which as a mentor in your PDA we felt like when students were started preparing, no, they take our modules and they start preparing. The one question they ask is कि सर क्या इसमें मेरे को हो जाएगा, and they start preparation with that negative thought actually, which is something which irritates me as a mentor also, because I think that if you have got a call, you should be very motivated. कॉल आ गया ना, अब अपना 100% दो। लेकिन स्टूडेंट्स का है कि कॉल आने के बाद भी सर शुड आई प्रिपेयर, शुडंट आई प्रिपेयर, इसका क्या आंसर करेंगे आप? सर मेरा केस अगर मैं बताऊं तो मैंने जब मेरे को कॉल नहीं आया था उससे पहले ही ज्वाइन कर लिया था। हाँ एंड अपनी बात है, तो आपने पूछा था कि तुम्हें कौन सा पीएसयू का कॉल आया, लाइक अभी तक तो कोई नहीं आया पर आएगा जरूर, तो कर लेते हैं। तो उस एटीट्यूड से चलना पड़ता है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो तो सर यही होता ना कि मेरा आईएसएल में भी नहीं होता तो हम आज इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, मैं गेट का प्रिपेयर कर रहा था। बट कभी तो एक फैक्टर है जो आपके साथ भी जाएगा, तो ये है कि जस्ट सो यू ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना चाहिए, राइट? यस सर, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करो बट कभी भी नेगेटिव मत हो। नेगेटिव मत हो, ये हाँ, मतलब पेशेंस इज द की सर, मतलब हमारे एक टीचर थे वो हमें कहते थे पेशेंस इज द वर्च्यू, तो सही बात है, वो हमेशा, तो वो हमेशा रखना रहेगा आपको। सही है। अच्छा, अब चलते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। अब इसमें आयुष्मान, जैसे मेरे को लगा है कि स्टूडेंट्स को भी ये आइडिया है कि उनको कितने मार्क्स रिटर्न में बना है और कितने इंटरव्यू में बना है 15 में से, तो क्या आपने एनालिसिस किया है हाउ मच यू गॉट आउट ऑफ 15 ईयर? सर आई हैव गॉट 12.5 आउट ऑफ 12.5। मैंने अभी तक 13 मैक्सिमम सुना है, तो हैव यू हर्ड मोर देन दैट? नो सर। So that 12.5 you got in this three. अच्छा, एक और चीज मेरे को लगा, जो बच्चों का रिजेक्शन लेटर में देख रहा हूँ जिसमें रिजेक्ट हुए हैं बच्चे, उसमें उन्होंने एक चीज लिखा है कि you may have not got selected in one of the steps or something like that. तो there were 3 things, you know, GD, GT and interview. GTPI। हाँ, तो क्या ऐसा था कि किसी एक में एलिमिनेशन हुआ है या 2 में एलिमिनेशन, कुछ समथिंग लाइक दैट? सर उस टाइम तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, उस टाइम पे तो नहीं बताया। जैसे एचपीसीएल ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया और वो तो निकाल भी रहे हैं, लेकिन आईओसीएल ने नहीं बताया था। लेकिन अब कुछ नहीं बताया था, एकदम अंधेरे में थे हम लोग, मतलब किसी को नहीं पता था उसका इंटरव्यू कैसा गया है, जीडी कैसा गया है। दे वर लाइक, मतलब दे वर नॉट शोइंग एनी रिस्पांस। वो बस बैठे होते थे, दे यूज्ड टू एनालाइज अस इन जीडी एंड जीटी, बट दे डिडंट शो एनी रिस्पांस। अब आयुष्मान, I'll ask you to share your journey also in IOCL interview, since people are going for HPCL also, तो जो ग्रुप टास्क चल रहा है वहां पे, and many students would like to know कि ग्रुप टास्क क्या था, if only you can tell task, ग्रुप जीडी क्या था, टॉपिक क्या था उसमें, and then we will come to your interview. ओके सर। सर एक्चुअली मेरा तो इंटरव्यू पहले हुआ था, बट हम जीडी जीटी की बात पहले कर लेते हैं। तो जीडी जीटी में इफ आई रिमेंबर देयर वर 6-7 ऑफ अस, एंड हमें एक राउंड टेबल के अराउंड बैठा, राउंड टेबल के अराउंड क्या मतलब राउंड सीटिंग अरेंजमेंट में बैठा दिया गया, एंड देयर वर 1 सर एंड 1 मैडम। तो एक्चुअली वी वर आस्क्ड टू, वी वर गिवन टॉपिक्स, 2 choices we were given. I didn't remember the second choice, but out of 2 choices we have to choose one. And we chose for GD I'm saying, for GD we chose climate, that global warming and all this thing. So we choose climate and we started. So when I started, so I was just looking for a second that will I be able to get the introduction statement for myself. I wanted to start the discussion myself, so I just waited for a second and I saw that no one is speaking, so I took the guard myself and I started the discussion. I gave the discussion starting, then there were inputs and there were other inputs as well. Sir, one thing I want to see that we always feel that in GD we have to speak, but in GD हमें एक चीज और करना चाहिए कि जो व्यक्ति बोल नहीं रहा है आप उसको डिस्कशन में लेके आइए, उसको पुल करो। हाँ, उसको पुल करो, तो उससे आपको ये एक रेस्पॉन्स मिलता है कि यार ये बंदा केवल खुद नहीं बोलना चाह रहा है, ये लोगों को भी बोलने का मौका दे रहा है। तो मेरे लेफ्ट साइड में जो मेरा बैठा था, तो आई आस्क्ड हिम कि तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर। जब हमने काफी डिस्कशन हो गया तो उसको भी आई इंक्लूडेड इट, एंड सर मतलब उससे पहले मतलब सर को भी लग रहा था कि ये बोल नहीं रहा है, तो सर वाज आल्सो कि आप इन्हें भी शामिल कीजिए, ऐसे उन्होंने बोला हमें। हाँ, तो उसके बाद हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने
उन दोनों को भी शामिल किया। और फिर ये हो रहा है कि आप डिस्कशन में हमेशा कभी भी डिसइंटरेस्ट मत शो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना पॉइंट बोला और आप चुप हो गए। आप दिखाइए कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन डिस्कशन। ये डिस्कशन है, आप अपना, हाँ आप केवल पॉइंट्स नहीं रख रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो, सुन भी रहे हो। हाँ तो उस बात को, और कुछ फैक्ट्स या फिगर, जैसे क्लाइमेट के ऊपर तो अपना यूरोपीडिया का हमेशा से रहता है कि वो जो मेन टॉपिक, जेनरिक टॉपिक्स में क्लाइमेट एक सबसे जेनरिक टॉपिक है, तो उसमें जैसे कुछ फिगर्स मैंने कोट करे, तो उस कोट के ऊपर किसी एक ने कहा कि हाँ आई हैव आल्सो रेड दैट, फिर उन्होंने बात करी एंड ऑल। फिर उसके बाद जीडी का जब हुआ तो एंडिंग जो है वो एक स्टूडेंट ने कर दी। वो मतलब मतलब जैसे वो कूदे कि अब एंडिंग तो हमें लेनी पड़ेगी कि तो कंक्लूजन मैंने कहा कि ठीक है। फिर ऐसे मतलब सर रूड हो जाता है, वरना कि हम चार जन एक साथ बोल रहे हैं। हाँ तो उन्होंने एंडिंग कर दिया, तो ये बात खत्म हो गया। उसके बाद ये हो गया हमारा जीडी। जीडी खत्म हुआ, हम वहीं बैठे थे और हमें उन्होंने एक पेज दे दिया था जीडी के टाइम भी कि आप कुछ नोट करें तो नोट कर लें, 2 मिनट का टाइम दीजिए, है ना। फिर जीडी जब हमारा खत्म हुआ, फिर उन्होंने ग्रुप टास्क की बारी बताई। तो ग्रुप टास्क के अंदर हमारा टॉपिक ये था कि बिकॉज वी ऑल वर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो हमें कुछ सिटी डिजाइन करनी है। कोई जैसे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो चल रहा है, तो अगर नई सिटी बनती है तो आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे दोगे उस सिटी के अंदर, क्या प्लानिंग रहेगी, तो वो आपको डिसाइड करना था। और उसके अंदर ये था कि हम डिस्कस करेंगे टास्क को, लेकिन इन दी एंड एक ही बंदा है जो बताएगा पूरा कि कैसे कौन सा स्टेप्स रहे। तो हमने जैसे ऐसे स्टेप किया। उसके अंदर एक बच्चा थोड़ा अग्रेसिव हो गया क्योंकि उसने कोई कोरिया से कहीं कोई कोर्स कर रखा था लोड ऑप्टिमाइजेशन पे, तो वो मतलब वो किसी को बोलने ही ना दे। तो उसको मैं मतलब शांत करा रहा हूँ कि गाइस लेट अदर आल्सो स्पीक ना। तो फिर जैसे वो उसका एक ही पॉइंट है लोड ऑप्टिमाइजेशन, अब वो उसको हर पॉइंट पे खींचे जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का पॉइंट है, किसी के पास क्या है। मैंने जैसे कई पॉइंट्स बोले, अब इट्स बीन क्वाइट अ डेज तो मुझे पॉइंट्स याद नहीं है मैंने क्या बोले, बट हाँ जीटी ऐसे गया था। फिर उसके अंदर एंडिंग के अंदर जैसे आया, तो एंडिंग के अंदर अब आई वाज कि यार मैं फिनिश करता हूँ, बट वो सो अग्रेसिव, मतलब किसी को बोलने नहीं दे रहा है, और वो ऐसे हो गया नहीं अब तो मैं ही करूंगा, जैसे वो एटीट्यूड आ गया था उसके अंदर कि मैं रूड तो नहीं हो सकता हूँ, ठीक है एक आध नंबर कम मिल जाए कोई बात। तो एनी वाज कि हाँ करेंगे। उससे पहले एक बच्चे ने कर दिया। अब उसने जब किया ना तो उसने अच्छा नहीं किया कंक्लूड, है ना। तो फिर दूसरा करने लगा, तो सर ने बोला कि आई वांट अ कंक्लूजन, आप लोग कंक्लूड कीजिए एक जना मिलके। तो फिर उसने जो तीसरा बंदा था उसने कंक्लूड किया ना, लाइक ठीक है कंक्लूजन। तो दिस वाज द जीडी एंड दिस वाज द जीडी। तो अब देखो, जैसे आयुष्मान अभी बच्चे ग्रुप टास्क की तैयारी कर रहे हैं ना एचपीसीएल में, उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि सर अगर कोई ऐसा आदमी तो में आ जाए, जैसा आप बता रहे हो आपके ग्रुप में आ गया था, और वो किसी को बोलने नहीं दे रहा है, तो सर सारे ग्रुप को लॉस हो जाएगा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? होता तो सर मेरे को लॉस हो जाता ना। सही है, मैं सेलेक्ट भी तो हूँ। लॉस होना होता तो हो ही जाता, लेकिन वो मतलब उसको अपनी चीज डालनी थी कि मैंने वहां इंटर्नशिप करी है, मैंने वहां ये करा है वो करा है, तो फिर तेरे को ब्रैग ही करना है तो ब्रैग कर लेनी। आपको हम्बल रहना है, कभी भी आपको ये ओवर स्मार्टनेस जो है ना वो कॉस्ट कर जाती है। मुझे इंटरव्यू के बाद पता लगा, उस दिन तो मुझे लग रहा था कि शायद मैंने गलत किया, मुझे बोल देना चाहिए था, बट अब रिजल्ट देख के लगता है कि चलो ठीक ही हुआ जो हुआ। Okay, great. So Ayushman, now coming to best part, that is interview part. The moment you entered and they started blasting you, now tell that interesting journey, interesting story. Yeah. Sir, I entered the room and there were 4 members. There was a ma'am on the extreme right, then there was a sir, then there was sir, he was pretty aged, and then there was a sir. So there were 3 male members and 1 female lady. Lady on the extreme right and 3 members on the left. So there was an arrangement and glasses were there and I was in my mask. So I entered and I wished everybody and I asked them to sit in this like sit. फिर जैसे मैं बैठा, no introduction and nothing, they're like why we should choose you. That's a first question. First question. Anna, what is in you that we should choose you and not others? So I was like कि चलो strength बताते हैं. तो strength में I said कि मैं responsible हूँ, adaptable हूँ, and है ना. And third thing I said that सर मेरा point तो ये था, मेरे को जो तीसरी मैंने strength कही वो थी कि मैं honest हूँ खुद से. मैं खुद को कभी झूठ नहीं बोलता. My point was that I never lied to myself. I'm quite honest with me. तो मतलब I have that critical analysis कि हाँ ये subject नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, मुझे पता है. मैं खुद को झूठ नहीं बोलूंगा कि हाँ हो गया है आगे बढ़. तो वो मेरा point था. But they took the word honesty and they started blasting me on different scenarios कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए. And basically after 1-2 questions I realized कि they want to take this out of my mouth कि हाँ मैं bribe दे दूँ. तो आई वॉज ऑफ द व्यू कि मैं ब्राइब तो नहीं बोलूंगा, फिर ये चाहे मेरे को कितनी बैंड बजा ले, मैं सॉरी बोलता भी गया, सब करता गया. फिर उन्होंने मतलब कई क्वेश्चंस पूछे कि तुम ट्रेन का टिकट कराने गए,
तब तुम्हें ऐसा ऐसा कुछ सिनेरियो बना के बोला कि ब्राइब देनी, तो तुम क्या करोगे। तो हर मोमेंट पे मैंने यही माना कि कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को हाथ धोना पड़े मेरी अपॉर्चुनिटी से धो दूंगा, पर ब्राइब नहीं दूंगा। फिर एक उन्होंने पूछा कि आज कैसे आए तुम, मैंने कहा सर कैब से आया हूं। तो बोले अच्छा कैब से आए। मैम ने पूछा तो कैब से आए तो तुम्हारा मान लीजिए कैब भिड़ गई तुम्हारी एंड पुलिस आ गई है एंड पुलिस वांट टू टेक यू टू द स्टेशन। अब तुम्हें इंटरव्यू के लिए भी आना है और तुम्हें स्टेशन ले जाने के लिए वो कह रहा है, तो तुम क्या करोगे। तो मैंने बहुत ही मतलब एकदम डिसेंसी से, कभी अग्रेसिव नहीं ना, एकदम डिसेंसी से धीरे धीरे जवाब दिया कि मैम फर्स्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द मैटर टू द पुलिसमैन दैट आई एम जस्ट अ कैंडिडेट, मेरा इंटरव्यू है, मैं तो पैसेंजर हूँ और मेरा ड्राइविंग से कोई लेना देना नहीं है, कार से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो ऐप पे बुक किया था और फिर मेरा इंटरव्यू भी है एंड तो हो सकता है वो मान जाए। और फिर मैंने खुद ही कह दिया कि इफ वो नहीं मानता तब भी तो आई वुड गो टू हिम विद पुलिस स्टेशन। बोले फिर इंटरव्यू, मैंने कहा सर मैम अगर नहीं मानता तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, फिर कोई इलाज नहीं। तो बोली अच्छा। फिर जैसे उन्होंने पूछा था कि IOCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर इवन आफ्टर बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो मैंने कहा कि मैम IOCL मुझे हेल्प करेगा कि मैं कंप्लीट इंजीनियर बन पाऊं। मैं केवल ऐसा इंजीनियर नहीं रहूंगा जिसको केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है। मैं यहाँ पे केमिकल इंजीनियर का भी काम सीख लूंगा कि रिफाइनरिंग कैसे होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी काम सीख लूंगा तो रिफाइनरिंग कैसे होती है एंड ऑल। तो दे वर लाइक कि अच्छा तो यू वांट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो अब ये मतलब कितना काउंटर क्वेश्चन है कि अच्छा मतलब तुम्हें सीखना कुछ का है, मास्टर किसी का नहीं बनना। तो मैंने कहा कि सर इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट आई एम क्वाइट इंक्विजिटिव अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, मुझे नई चीजें सीखनी है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट बीइंग इन द IOCL। फिर उन्होंने एक पूछा था कि एक क्वेश्चन, हाँ उन्होंने जैसे पूछा कि उसका मैं आंसर नहीं दे पाया कि तुम्हें गुस्सा किस बात पे आता है। तो आई वाज कि सर आई नीड टू थिंक। तो फिर मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो बोले कि हमारे लोगों के द्वारा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने से आता है क्या। तो देख रहे थे इस लड़के को गुस्सा ही नहीं आ रहा। हाँ लाइक नो सर ऐसा तो नहीं है ना। फिर वो बोला अच्छा लीव इट, दिख रहा है तुम्हें किसी बात पे गुस्सा नहीं आता है। फिर फिर जैसे वो बीच वाले सर थे तो उन्होंने पूछा, फिर जैसे ये HR का बेसिक पार्ट हो गया है। फिर वो बीच वाले सर थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि सर पावर सिस्टम, कौन सा सब्जेक्ट प्रेफर करोगे। तो मैंने कहा सर पावर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो दे वाज लाइक क्यों और कुछ नहीं पढ़ा क्या। तो लाइक नहीं सर पढ़ा सब कुछ है बट द प्रेफरेंस विल बी दीस टू सब्जेक्ट, है ना। है ना, प्रेफरेंस विल बी दीस टू सब्जेक्ट। अच्छा तो मशीन में कौन सी, AC या DC। तो मैंने बोला सर AC। बोले DC क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि सर एप्लीकेशन नहीं होती ये वो, तो उसका आंसर दे दिया। फिर AC के अंदर कौन सा, इंडक्शन या सिंक्रोनस। तो मैंने कहा सर इंडक्शन मशीन्स। तो बोले इंडक्शन क्यों, सिंक्रोनस क्यों नहीं। तो उसका मैंने दे दिया कि सिंक्रोनस मशीन का कम यूज है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, AC DC दोनों चाहिए रहता है ये सब, और इंडक्शन के अंदर स्पीड कंट्रोल तो ज्यादा एप्लीकेशन है। फिर बोले अच्छा। तो मैंने बोला कि सर इंडक्शन मशीन के एप्लीकेशन बताओ। तो मैंने कहा कि सर मोस्टली जहां भी हम मशीन यूज कर रहे हैं वो इंडक्शन मशीन है, फिर वो चाहे हमारा AC हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर हमारा फैन ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पीड कंट्रोल अलाउड है। लेकिन जो भी मशीन जिनके अंदर केवल कांस्टेंट स्पीड से हम चल रहे हैं वो सिंक्रोनस मशीन है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा फैन, तो फैन के अंदर सर एक्चुअली हम जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना तो गेट के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मशीन ही बेसिकली फोकस करते हैं। 1 फेज इंडक्शन मशीन पे हम बस एक आध क्लास में, जो भी टीचर होता है वो एक आध क्लास ही पढ़ते हैं और थ्योरी बेसिकली पढ़ते हैं। तो बोले कि हमारे फैंस में कौन सी होती है, 3 फेज मशीन होती है। मैंने कहा नहीं सर 1 फेज इंडक्शन मशीन। बोले 1 फेज में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप के अंदर एक्चुअली सर मेरे को ये आता है कि एक मोटर होती है जिसमें 2 कैपेसिटर होते हैं, एक होती है जिसमें एक ही कैपेसिटर होता है। तो लाइक कि सर 2 कैपेसिटर 1 कैपेसिटर। फिर मैंने उनको वर्किंग बताई कि हाउ दे वर्क, तो वर्किंग बताया मैंने। तो फिर वो बोले कि यू आर टेकिंग द रॉन्ग नेम, इट इज कॉल्ड रन एंड स्टार्ट टाइप एंड इट इज कॉल्ड परमानेंट स्टार्ट टाइप। मैंने कहा सॉरी सर नाम मेरा गलत हो सकता है कि मैंने नाम गलत बोला। तो टेक्निकल मुझे लगा कि मैंने टेक्निकल अच्छा दिया, मतलब टेक्निकल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो, लेकिन ये भी है कि वो बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। मतलब दे आस्क यू बेसिक थिंग्स कि तुम्हें आइडिया भी है या नहीं है, या घुमा रहे हो तुम। तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद एक सर लेफ्ट में बैठे थे, तो हमें एक्चुअली स्टार्टिंग में जो PPT दिखाई गई होती है उसके अंदर से आपको बुलेट पॉइंट बना लेने चाहिए कि कहीं अगर कुछ भिड़े तो मैं बढ़ा दूं, IOCL का इसमें बढ़ाई कर दूं। बेसिक बात है, आपको बढ़ाई करनी आनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, फिर IOCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो एक आध तो सर जो बहुत जेनरिक आंसर है जो शायद हर बच्चा देगा कि सर अपॉर्चुनिटीज हैं, ये है वो है, तो वो उसको सुन के वो पक भी चुके होते हैं। तो लेकिन मेरा तो खैर तीसरा चौथा नंबर का ही था स्टार्टिंग में। तो मैंने एक आंसर प्रिपेयर किया था कि एक्चुअली सर IOCL जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज बनाने वाला है, और उसके साथ उन्होंने इजराइल फर्म के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है,
और एल्यूमिनियम से बैटरी बनाएंगे वो, क्योंकि इंडिया में एल्यूमिनियम में मिलता है, लिथियम मिलता नहीं है, तो एल्यूमिनियम से बैटरी बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैंने कहा सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है, और IOCL फर्स्ट कंपनी है जिसने इतना बड़ा वेंचर किया है, हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाने वाले हैं, हम बैटरीज भी बनाने वाले हैं। तो उनका मेरे को रेस्पॉन्स आया कि हाँ, दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय आंसर। तो ये आंसर हुआ। उसके बाद सर ने लास्ट, अब हुआ ये कि एक सर जो थे थोड़े मतलब स्ट्रिक्ट से थे, वो शायद साउथ इंडियन रहे होंगे, तो उनका एक्सेंट पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मास्क भी मेरा ऊपर था, अब जैसे बात करते हैं तो मेरा मास्क यहाँ खिसक गया, तो मैंने मास्क, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि विद इन द कोर्स ऑफ इंटरव्यू मैंने मास्क क्यों कर लिया। तो ही वाज लाइक कि तुम तो बहुत बोलते हो कि तुम ऑनेस्ट हो यार, मास्क तो तुमने बिना पूछे नीचे कर लिया। सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने ऊपर कर लिया। अब सर अभी मैं हंस पा रहा हूँ, बट उस दिन जो बैंड बजाई है उन लोगों ने, मतलब मिलके सबके सब मैडम, हाँ, बीच बीच के हंस रहे हैं, हंस भी रहे हैं। एंड आई वाज कि यार मेरे से एक पहले वाला इतना सूदिंग उसका इंटरव्यू हुआ है, वो IIT गोवा से था, उसका 9+ CGPA था। उसकी मैन मेरी तो बैंड बज गई, अब नहीं होने वाला है। एंड जो मैंने हिसाब लगाया था उस हिसाब के अंदर मेरे आ रहा था कि मेरे को 3-3.5 नंबर कवर करने हैं इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए। तो आई वाज कि यार 3-3.5 नंबर 15 नंबर में कैसे भी नहीं होने, और इस इंटरव्यू के बाद तो बिल्कुल नहीं होने। तो हाँ, तो इंटरव्यू फिर वो बोले कि ओके लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। तो उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट द क्वेश्चन वाज। हाँ, जैसे लैंग्वेज का उन्होंने एक पूछा था कि तुम तो राजस्थान के हो, राजस्थान में रहे हो, तो तुम्हें अगर कर्नाटक में या तमिलनाडु के अंदर हो जाए तो तुम कैसे करोगे। तो मैंने कहा सर मैं अडेप्टेबल हूँ, एंड मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। लाइक इंग्लिश से क्या होता है, गाँव में तो किसी को इंग्लिश नहीं आती, फिर कैसे करोगे। तो मैंने कहा सर अडेप्टेबल हूँ, सीख लूंगा, नहीं सीखूंगा तो विद इन द एनवायरमेंट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो ऐसे कर करके मतलब मैं काम बहुत रहा, लेकिन अंदर से मेरी बैंड बजी पड़ी कि दिस इज नॉट गोइंग वेल द वे आई वांटेड। तो ये हुआ। फिर उसके बाद दे वर लाइक ओके थैंक यू। तो क्या लगता है कि वो मैडम जो थी वो लगातार हंसे जा रही थी ना कि यार मतलब इतनी बेइज्जती हो रही है सब बैंड जाने, और एकदम स्ट्रेट फेस, और कोई इंटरव्यूअर कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। जो टेक्निकल वाले सर हैं वो एकदम स्ट्रेट फेस के हैं, और जो थोड़े स्ट्रिक्ट से सर हैं उन्होंने तो मास्क ही पहन रखा है। यू डोंट नो दैट हाउ दे आर रिस्पोंडिंग टू माय आंसर। तो फिर ऐसे हुआ, फिर आई वाज बाहर आया एंड आई वाज यार दिस इंटरव्यू इज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फिर उसके बाद दे वर लाइक कि हाँ खाना वाना खा लो। फिर हमने खाना खाया। उसके बाद दे वर लाइक कि खाना खा के इतने बजे तक मिल जाना GD/GTO। फिर हमारा GD। तो आयुष में क्या लगता है व्हाट वर्क डू योर वेयर? आपका इंटरव्यू पूरा स्ट्रेस प्रेशर इंटरव्यू चलता रहा, बट क्या लगता है आपको व्हाट वर्क फॉर यू इन इंटरव्यू? सर 2 चीजें वर्क करी जो मुझे लगता है। एक, उन्होंने मुझे अनएथिकल प्रूव करने का ट्राई किया, ये कहीं तो टूटेगा, कि कहीं तो मान जाए ब्राइब। जैसे मैं कहता कि हाँ सर इधर दे दूंगा, तो वो मेरी बैंड में जाती थी कि तुम कहीं के ऑनेस्ट हुए। फिर तो कि कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी बैंड में जाए, कि हो सकता है मेरे आंसर्स प्रैक्टिकली अच्छे ना लग रहे हो, कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है ना। लेकिन उसकी अगर मैंने ऑनेस्टी बोल दिया और दे हैव पिक द वर्ड ऑनेस्टी, तो मुझे ऑनेस्ट तो रहना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं ब्राइब दे दूं। तो मुझे इतना बैश किया उन्होंने, बहुत सिनेरियोस दिए थे, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत सिनेरियो दिया, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर क्या करोगे, ऐसे में आ गए प्रोजेक्ट तुम्हें बनवाना है, मिनिस्टर ऊपर पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर क्या करोगे। तो हर तरफ से मैंने हार ही मान ली कि हाँ ठीक है, नहीं होता तो नहीं होगा, फिर ब्राइब तो नहीं दूंगा। बिकॉज मैंने एक बात भी बोली कि विशियस सर्कल है, जब तक हम देते रहेंगे तब तक वो मांगते रहेंगे, तो वो खत्म नहीं होने वाला है। फिर तो वो कहीं तो तोड़ना कर करके, हाँ, तो उन्होंने इतना ट्राई किया पर मैं टूटा नहीं। तो शायद वो हो सकता है कि मेरे फिटमेंट में भी। एंड जो तुम काम रहे पूरे इंटरव्यू में। हाँ, मैंने एक बार भी ना अपनी आवाज तेज करी, एकदम कामनेस से, एकदम एक्सप्रेशंस के साथ, हाथों के साथ अपने आंसर्स दिए। और बाहर स्माइल करते रहे आराम से उस तरीके से। हाँ, वो तो मतलब दे वर ट्राइंग कि इसको गुस्सा आ जाए कैसे भी। नॉर्मली होता क्या है कि जब बच्चों से 2-4 क्वेश्चन ऐसे टेढ़े पूछ लेते हैं ना उन्होंने, तो बच्चों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद वो सैड हो जाते हैं और उनके चेहरे पे दिख जाएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आवाज चली जाएगी। तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। तो देखो आपका टिपिकल एग्जांपल है यार कि जिसमें बहुत प्रेशर इंटरव्यू चला, सारे उन्होंने क्वेश्चन टेढ़े पूछे और उसके बाद भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ चेक करते हैं। वो चेक जो आपके केस में उन्होंने किया कि अपने स्टैंड पे खड़े रहो, एंड दूसरा कामनेस और अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। दीस 2 थिंग्स वर्क फॉर यू। और मुझे ये था कि मुझे मेरा जो ट्रेनिंग का मैंने प्रोजेक्ट किया था वो काफी अच्छा था, मतलब आई वाज वेल वर्स्ड विद इट। तो मुझे था कि एक आध क्वेश्चन तो आएगा ट्रेनिंग से, बट दे डिडंट आस्क मी अ सिंगल क्वेश्चन विद माय ट्रेनिंग कहाँ है, प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठे, कुछ ऐसा नहीं थे। कॉन्स्टेंटली जस्ट बैशिंग मी की उन्होंने। हाँ, वो स्ट्रेंथ पकड़ा उन्होंने और उसके पीछे पड़ गए। तो ऐसे हुआ। फिर व्हेन आई केम आउट इट वाज जस्ट 15 मिनट।
तो आई वाज कि यार मतलब 15 मिनट में ही हो गया और मेरे से पहले 30 मिनट आधा हुआ घंटा है। चला। हाँ तो आई वाज कि यार सो इसका नहीं। मतलब ड्यूरेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया, जो लोग बोलते हैं कि हाँ साहब मेरा 45 चलेगा तभी मेरे को लेंगे और इसका 5 ही हाँ चला, वो रीजन हाँ नहीं होता। नहीं होता है हाँ हम्म। ये चलो आयुष्मान, व्हाट इज द मैसेज टू यंगस्टर्स? मैं सर यही है कि पेशेंट रहे, काम रहे। बस काम करते रहे। मतलब जैसे इंटरव्यू के दौरान मैंने मॉक तो शायद 2 ही इंटरव्यू दिए थे, फुल मॉक एक आध ही दिया था। बाकी सब्जेक्ट इंटरव्यूज अगर आप योरपीडिया ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट इंटरव्यू जरूर दें, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हम गेट के दौरान सब्जेक्ट को लिटरली पढ़ते नहीं है। हम शायद क्वेश्चंस लगाना और मैथमेटिकल एप्लीकेशन ढंग से सीख जाते हैं, बट उस सब्जेक्ट का जो फील है वो हम नहीं लेते हैं। तो वो बुक से आएगा। अब बुक में भी बहुत चीजें नहीं है, जैसे स्काडा है या जो नई टेक्नोलॉजीज है, वो आपको तब पता पड़ेगा जब आप सब्जेक्ट वाइज स्नैप लगाओगे। तो सब्जेक्ट वाइज स्नैप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो सर थे आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। वो तो वो मुझे बता देते कि ये तुमने नहीं पढ़ा, ये तुमने नहीं पढ़ा, ये तुमने नहीं पढ़ा। तो वो मैं पढ़ता था, उसके बाद फिर स्नैप लगाता था वो पढ़ के। तो ये है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ चलो आयुष्मान, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर एंटायर फैमिली, थैंक एंड यू सर। थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर टाइम टू मी टुडे। थैंक यू सो मच सर, की मतलब योरपीडिया ने भी हेल्प किया, मुझे काफी हेल्प किया इंटरव्यू को निकालने में। ओके, थैंक यू।